تو سکلین آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے دنیا نے آج کر دیا ہے کہ اسلام اور جنرل میں اور تمہارے خود کے نفس میں یعنی تمہارے خود کے جسم میں اللہ کی آیات ہے اور ان لوگوں کے لیے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، اس آسمان زمین کو دیکھو کیسے بنایا، اس کیمل کو ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ قرآن میں تو آیت ہے کہ کیا تم نے میرے زمین کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کیسے بچھایا، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے میں نے بلند کر دیا، پہاڑوں کو کیسے میں نے کھوٹا کی طرح گاڑ دیا، اور رنگ برنگے پہاڑ، پیڑ پودے، جنگلات ہیں، جانور ہیں۔ لیکن جب میں نے کنیکٹ کیا اللہ کے رحم و کرم سے قرآن کو اور ماڈرن اسٹڈیز کو، تو میرے یقیناً لٹرلی آپ سے ایسے لگا کہ میری زمین سے، میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ دیکھو آسمان کو بار بار دیکھو، پھر دیکھو، پھر تم جتنی بار یہ آسمان میں دیکھو گے تمہیں ایک آسمان میں کوئی بھی فالٹ، کوئی بھی کمی، کوئی بھی غلطی نظر نہیں آئے گا۔ تو سکلین آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے دنیا نے آج کر دیا ہے کہ اسلام اور جنرل ایجوکیشن کو دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں کو مرج کرنی چاہیے یا کس حد تک ضروری ہے؟ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ سر میرا اس میں سوچ ہے کہ کوئی انسان اگر کلیم کر رہا ہے کہ میں قرآن کا نالجبل پرسن ہوں، I have all kind of Quranic understanding, if he claims, then according to me he should have immense knowledge of science and other, not only science. چاہے آپ سائنس لے لیں، چاہے فزکس، کیمسٹری، بایو کو چھوڑ کر دیکھیں، یہ تو ہے ہی، اس کے بعد لا دیکھیں، لا دیکھیے، آپ چاہے مطلب آرٹ اینڈ کرافٹ کچھ بھی دیکھ لیجیے، آپ جیومیٹری کوئی بھی، آپ کو قرآن کو بہت ڈیپ سمجھنا ہے، لائک اللہ سے کہ تم غور فکر نہیں کرتے، اگر آپ کو ہمیں ڈیپ سمجھنا ہے پھر ہم کو سائنس پڑھنا ہوگا، ہم کو فزکس پڑھنا پڑے گا، ہم کو بایو پڑھنا پڑے گا، ہم کو لا پڑھنا پڑے گا، کیونکہ سر وی ول بی سرپرائز دیٹ قرآن میں جو لا بیان کیا گیا ہے کس چیز کے بارے میں، میراث کے بارے میں، لائک میراث، لائک کہ جب اگر کوئی آدمی اپنا جو لینڈ ہے، اپنا پیسہ ہے، اگر اس کو رکھ کر مر رہا ہے، ڈیتھ ہو رہا ہے، تو ان کو کیسے بانٹا جائے گا، ون آف دا خطرناک میتھڈ اللہ یوز دیٹ اللہ آلسو، دیٹ مینس یو ہیو ٹو ریڈ دا لا، رائٹ؟ یس رائٹ، سو مطلب یہ ہے، اگر ایگزامپل کے طور پر کوئی سورۃ القیامہ پڑھ رہا ہے اور سورۃ القیامہ میں اللہ جو ہے ہیومن ایمبرولوجی کے بارے بیان کر رہے ہیں، تو دس مائی کوشچن ٹو دیٹ پیپل ہو از سیئنگ کہ آپ کو سائنس نہیں پڑھنا، سائنس از ناٹ اے پارٹ آف اسلام، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس آیت کو کیسے ایکسپلین کیجیے، رائٹ؟ اور صرف یہی نہیں سر، قرآن کنٹینز more than 1000 scientific ayats, like for example Allah says کہ ہم نے اس آفاق میں، اس یونیورس میں سارے چیز جو ہے وہ فلوٹنگ کر رہے ہیں، وہ تیر رہے ہیں، رائٹ، فسون کر رہے ہیں، تو جسٹ تھنک دیٹ کہ اللہ آفاق کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یونیورس میں سارے سیلسٹیل آبجیکٹ جو ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں، وہ فلوٹ کر رہے ہیں، تو اس چیز کا میننگ وہ کیا ہے، کیسے لے گا، رائٹ؟ اور صرف یہی نہیں سر، اللہ سیز کہ Allah says in Surah Al-Jinn or Surah Al-Jinn, I think Allah says that کہ اے انسانوں یہ ان آفاق میں یعنی آسمانوں میں اور تمہارے خود کے نفس میں یعنی تمہارے خود کے جسم میں اللہ کی آیات ہے اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ ڈسبلیو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیٹ مینس اللہ ہم لوگ کو یہ بات ایمفاسائز کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں ہے، صرف کہ زمین و آسمان پہ اور فکر کرنا ہے، اور صرف اللہ سے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، اس آسمان زمین کو دیکھو کیسے بنایا، اس کیمل کو دیکھو، کیمل مطلب اونٹ، یس، اونٹ کو کیسے بنایا۔ اگر کوئی انسان اونٹ کے بارے سائنٹیفک کر لے اس کا دماغ گھوم جائے گا، ہاؤ اللہ ہیز میڈ دا اونٹ، رائٹ؟ سو سر میرا کہنا ہے کہ اگر، اور صرف یہ بات نہیں، اور ساری بات، لائک اللہ سیز ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یہ رات اور دن کے ہیر پھیر میں
डे नाइट, दिन के रात, रात के दिन होने में अकल वालों के फिर अल्लाह कहते हैं अफला तदक्करून, उन लोगों के लिए निशानी है जो अकल अकल रखते हैं। अब सर जो लोग कहते हैं कि यू कैन नॉट थिंक, यू कैन नॉट डिस्कस अबाउट द रिलीजन, मेरा उनसे सवाल है, क्या आप अगर आप कुरान को डिस्कस नहीं करेंगे तो आप बताएं आप इसका मीनिंग कहाँ से लाएंगे, राइट? जैसे कि मैं अपना ज़िंदगी भी कनेक्ट कर पाया हूँ, मतलब कि जब मैं इस्लाम से कनेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो मैं इस्लाम को इतना आउटडेटेड समझता था, खुद को ओवर स्मार्ट समझता था, जो मेरी जाहिलियत में समझ सकता हूँ कि मैं इस्लाम को अपने लायक ही नहीं समझता था, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन जब मैंने इस्लाम को स्टडी करना सीखा और कैसे इस्लाम को भी साइंस के साथ मैंने स्टडी करना स्टडी किया, तो ये चीज़ मुझको इतना अपील किया कि मैं सोच रहा था कि इस्लाम इतना आउटडेटेड है, लेकिन ये इतना एडवांस है कि मुझको झटका लगा। ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मैं सोच रहा था कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, कॉलेज में टॉप आता हूँ, स्कूल में मैं टॉप आया हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, बहुत जानता हूँ, ये इस्लाम तो पुरानी बातें हैं, ये सब कौन इसे समझता है, कोई मुझे समझाता, मैं समझता नहीं था। लेकिन जब मैंने कनेक्ट किया अल्लाह के रहम करम से कुरान को और मॉडर्न स्टडीज़ को, तो मेरे यकीनन लिटरली आई एम सेइंग दैट ऐसे लगा कि मेरी ज़मीन से, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, ठीक है। उसके बाद मैं ज़िंदगी में तो एक तहलका, मतलब कि एक मूवमेंट आ गया, एक चेंजेस आ गया, और उस दिन से मैं आज तक अपने आप को इतना चैलेंजिंग पाता हूँ, मैं पाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। और जो कुछ भी मेरे अंदर भी थोड़ी सी भी अगर चेंजेस और क्वालिटी अगर दिखती है, वो मुझे लगता है कि वो इस्लाम की देन है और किसी चीज़ की देन नहीं है। क्योंकि पहले मैं इस्लाम को और दुनिया को अलग करता था, लेकिन जब को मैंने इस्लाम को दुनिया को इकट्ठा किया, तो मेरे अंदर में बहुत सारी अच्छाइयाँ और खूबियाँ पैदा हुई। तो मैं सोचता कि अगर मेरे अंदर में 0.1% भी अगर अच्छाई अगर आज है, तो बिकॉज ऑफ इस्लाम। अगर मैं इस्लाम को अलग कर दूं तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहली की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी को कंपेयर करता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी वो ज़िंदगी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। आज मैं जो भी जानता हूँ और जो कुछ भी अच्छाई मेरे अंदर बिकॉज ऑफ इस्लाम होगी। सर आप जो पहाड़ घूमते हैं उसके बारे में बताइए। अब मैं कुरान में तो आयत है कि क्या तुमने मेरे ज़मीन को नहीं देखते कि मैंने कैसे बिछाया, और क्या तुम नहीं देखते कि आसमान को कैसे मैंने बुलंद कर दिया, पहाड़ों को कैसे मैंने खूंटा की तरह गाड़ दिया, और रंग बिरंगे पहाड़, पेड़ पौधे, जंगलात है, जानवर है, और नदियाँ वादियों से बह के निकलती है और अपने आसपास के एरिया को जरखेज बनाती है, फिर जाके समुद्र में मिलती है। तो ये दिन का होना, ये रात का होना, खूबसूरत वादी, ये सब बेमकसद इन चीज़ को मैं देखता हूँ, फील करता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में आप जो कह रहा है कि अकल रखने वालों के लिए निशानी है, क्या वो आसमान ज़मीन को गौर नहीं करते? तो बिल्कुल मैं मैच करता हूँ कि अल्लाह, या अल्लाह, तूने जो कहा वो बेशक वैसी यह चीज़ है और बेमकसद कोई चीज़ नहीं है। और अल्लाह ताला कह रहा है कि इन चीज़ों के बनाने के बाद क्या ये चीज़ बेमकसद है? क्या तू बेमकसद है? यानी कि कोई इंसान बगैर मकसद के नहीं है, अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, तो उसे अल्लाह के पास अकाउंटेबिलिटी है, उसे जवाब देना होगा। तो ये चीज़ हमें करेक्ट करता है कि जब अल्लाह ताला ज़मीन, आसमान, हर चीज़ को बनाया और कह रहा है कि जब इन चीज़ को मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखा हूँ और इस चीज़ को चलाना मेरे लिए आसान है, तो ये इंसान जो मिट्टी में मिल जाएगा, उसको दोबारा ज़िंदा करना और उससे सवाल जवाब करना, ये आसान, ये मुश्किल नहीं, बल्कि बहुत ही आसान है ये चीज़। अल्लाह ताला बिल्कुल आसानी से हमें ज़िंदा करेगा, हमें सवाल जवाब करेगा। तो जितना मैं गौर फ़िक्र करता हूँ नेचर को, उतना मैं कनेक्ट कर पाता हूँ खुद को अल्लाह से, और लगता है कि अल्लाह ने जो कुरान में मेंशन किया है, वो सारी चीज़ देख करके मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की वो सारी बातें वो दुनिया आसमान में है। और मेरा वो मुझे मेरा मैं आपको हाँ, ईमान ताज़ा हो जाता है, मेरे जिस्म का बाल रोंगटा खड़ा हो जाता है, और मैं रोता हूँ अकेले में, तन्हाई में, कि वाकई में अल्लाह ताला तू जो कह रहा है वो चीज़ बिल्कुल है। कुरान में जो कह रहा है वो चीज़ पूरी दुनिया और आखिरत के ऊपर दिखाई दे रहा है, दुनिया और आसमान में दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। इसलिए आई लव टू ट्रैवल, और मैं यूथ को यही करना चाहूँगी कि आप लोग भी ट्रैवल कीजिए, फजूल कपड़ों में या मूवी देख करके उस चीज़ ना करके पैसे को सेव कीजिए, और साल में 1-2 बार तो आप कुदरती चीज़ों की तरफ ट्रैवल करें। आपका ईमान ताज़ा होगा, आपके नॉलेज में बेज़ाब्ता इंतहा होगा। आप इसको अपने हॉबीज़ में शामिल कीजिए। That means, sir, the same thing Allah says, ربنا خلقت ما هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. That we say to Allah कि या रब, आपने इस चीज जमीन व आसमान में कोई चीज यूं ही नहीं पैदा किया, कोई भी फालतू नहीं पैदा किया, सबका एक पर्पस है। That means, sir, that means जब हम लोग जमीन व आसमान पर जब हम लोग घूमते हैं, वक्त फिक्र करते हैं, तब अगर हमें ये सारी अल्लाह की आयात याद आती है सर, that is the real test of iman, that is the real तफसीर, that is the real explanation of the Quran. क्योंकि अल्लाह से कि सूरतुल मोमिनून कि मोमिन वो है जिनके सामने अल्लाह की आयात पेश की जाती है, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनकी जो ईमान है, वाज़ियादत ईमान व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनका जो ईमान है उसमें ये इजाफा इंक्रीज हो जाता है, और वो अल्लाह के खौफ से ऐसे कपने
लगते हैं और वो डरने अल्लाह से डरने लगते हैं. That means कि अगर वो इसलिए हम सबको कहते हैं सर, अगर कुरान को हम फील कुरान पढ़ना, तफसीर पढ़ना, सब कुछ करना, दैट्स वन प्लेस, दैट्स गुड. बट आप Feel कुरान करना. को किस वक्त, लास्ट टाइम आप बताइएगा, लास्ट टाइम आपने कुरान को कब फील किया है? अब आप जब भी फील किए भाई ये जमीन और आसमान देखिए अल्लाह से अल्लाह से वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिह वजअलनाहा रुजुमन लिशयातीन, कि हमने आसमान को सितारों से सजाया. वी हैव डेकोरेटेड दिस आसमान विद स्टार्स. सो उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि ऐ देखने वाले तुम देखो आसमान को, बार बार देखो, फिर देखो, फिर तुम जितनी बार ये आसमान में देखोगे तुम्हें एक आसमान में कोई भी फॉल्ट, कोई भी कमी, कोई भी गलती नजर नहीं आएगा. और तुम जब भी देखोगे तुम्हारी निगाह शर्म खाकर जो है वो नीचे आ जाएगी. सुभान अल्लाह. बिल्कुल, अल्लाह का ये कहने का मकसद यही है कि इतनी चीज़ों को हमें दिखला रहा है, समझा रहा है कि आसमान को देखो, ज़मीन को देखो, किस तरह से अल्लाह ने ज़मीन को बिछा दिया, आसमान को कैसे बुलंद कर दिया. इसका कहने का एक ही मकसद है अल्लाह का, बार बार कि हम बंदों को, हम इंसान को अल्लाह से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. और हम इस दुनिया में बगैर मकसद के नहीं आए. अल्लाह ने हमें भेजा है, विद पर्पस भेजा है, और हमें उसका जवाबदेह होंगे अल्लाह के सामने. तो अल्लाह हमें बार बार एहसास दिला रहा है कि अपने रब से कनेक्ट हो, और इस कनेक्शन में किसी का अल्लाह का फ़ायदा नहीं, हमारा ही फ़ायदा होने वाला है. क्योंकि जब हम अल्लाह को समझते हैं, इस्लाम को समझते हैं, हमारी ज़िंदगी आसान भी होती है और ज़िंदगी में खूबसूरती आती है और हर चीज़ का डिसिप्लिन हो जाता है लाइफ का. अगर हम इस्लाम के बाहर होते हैं, हर चीज़ उथल पुथल होता है, आउट ऑफ डिसिप्लिन होता है. तो डिसिप्लिन लाने के लिए अल्लाह से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह के सामने हमें जवाब देना है. इसलिए अल्लाह ताला बार बार हमें कहना पड़ा है. हाँ, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त बहुत कीमती वक्त देने के लिए. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला जिसके साथ इतनी डिटेल के साथ दीन की बात करने का मौका मिला. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ सर कि अल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रखे, बहुत खुश रखे, और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा. बारक अल्लाह व लकुम फ़ी कुल हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.